Hello viewers, today we will solve section C of this paper. We have already solved sections A and B and video links of A and B are given in description box. There are 5 questions in this section and the first question is as follows. In this question, we have to trace the given curve. To find the approximate shape of a curve, we will follow following steps. First, we will check symmetry of the curve. Since y has even power, so curve is symmetrical about x-axis. Now we will find out whether the origin lies on the curve or not. अब इसके लिए हम चेक करेंगे कि कर्व में कोई कांस्टेंट टर्म है या नहीं. अब क्योंकि कर्व में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, so curve is passing through the origin. In third step, we will obtain tangents at origin. और इसके लिए हम लोएस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के इक्वल रखेंगे. अब गिवन कर्व में 4a² लोएस्ट डिग्री टर्म है, तो इस टर्म को 0 के इक्वल रखकर सॉल्व करने पर x = 0 प्राप्त होता है, जो कि y एक्सिस की इक्वेशन है. Therefore, y axis is tangent at origin. In fourth step, we will find the points where the curve meets x-axis and y-axis. अब हम पॉइंट 2a0 पर टेंजेंट निकालेंगे और इसके लिए कर्व में x को x + 2a से रिप्लेस करेंगे और y को y + 0 से रिप्लेस करेंगे. Now tangents at the point 2a0 are. अब हम ये पता लगाएंगे कि कर्व कौन से क्वाड्रेंट्स में है और कौन से क्वाड्रेंट्स में नहीं है. So for this, solving the equation of the curve for y. As we can see, if x is greater than 0, then y is real. So the curve exists for all values of x greater than 0. But if we take x less than 0, then y is imaginary. So the curve does not exist for x less than 0. That is, the curve does not lie on the left hand side of the y-axis. हालांकि हम कर्व को ट्रेस करने के लिए कुछ और पॉइंट्स जैसे एसिम्पटोट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, स्लोप ऑफ टेंजेंट और मैक्सिमा मिनिमा आदि भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इन पॉइंट्स को नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने जो पॉइंट्स निकाले हैं उनकी हेल्प से हम कर्व को ईजिली प्लॉट कर सकते हैं. तो अब हम कर्व को प्लॉट करते हैं. In this question, for given function, we have to prove these two expressions. तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करेंगे. Here, y1 is first derivative and y2 is second derivative of y with respect to x. अब हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. Now, squaring both sides,
and using equation 1 we get अब हम इक्वेशन 2 को x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 स्क्वायर ये दोनों x के फंक्शंस हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। Now, after eliminating 2y1, we get, so this is our first result. अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन को प्रूफ करेंगे। Now we will differentiate each term of equation 3 n times. Here we will use Leibniz theorem for differentiation. Suppose u and v x के दो फंक्शंस हैं और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं। अब हमें इनका n टाइम्स डिफरेंशियल करना है, तो लेबनीज थ्योरम का यूज इस प्रकार से किया जाएगा। अब हम लेबनीज थ्योरम को इस एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे। इसके लिए x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u मानेंगे और y1 y2 को v मानेंगे। And now we will apply Leibniz theorem. Now after rearranging the terms, we get and this is our second result. In this question, we have to verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix A dash, which is transpose of the given matrix A, and then we will find the inverse of matrix A. Since the given matrix A is a symmetric matrix, so now we know that Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. अब हम इस क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर A गिवन मैट्रिक्स है और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब क्योंकि मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3×3 है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3×3 होगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम यहाँ पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। Now, the characteristic equation of given matrix is, अब हम कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा को मैट्रिक्स ए से रिप्लेस करेंगे और साथ ही इस कांस्टेंट वैल्यू को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार हमारे को एक मैट्रिक्स इक्वेशन प्राप्त होगी। नाउ टू वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, we will solve left hand side, and after calculation if we get zero matrix then theorem will be verified. So let's start the calculation.
Now in third step, we will find inverse of matrix A by using this matrix equation. तो A इन्वर्स के लिए इस मैट्रिक्स इक्वेशन में दोनों साइड्स में A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स इस प्रकार है। In fourth question of section C, A and B are two unit vectors which are inclined at an angle A, and we have to prove these three parts. So let's start with the first part. Now as we know that, अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is commutative, that is, अब इन दोनों रिजल्ट्स को यहाँ यूज करेंगे। Since we know that in vector calculus, dot product of two vectors A and B is defined as, now we are using it in this expression. अब गिवन वेक्टर्स A and B यूनिट वेक्टर्स हैं और हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो नाउ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट आफ्टर अप्लाइंग दिस रिजल्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी प्रूव्ड। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ किया था, बिल्कुल उसी तरह से सेकंड पार्ट को भी प्रूफ करेंगे। थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को इस तरह से यूज करेंगे। In the last question of section C, we have to evaluate given three integrals. So let's start with the first integral. In this integral, we have to integrate x square sin x with respect to x. क्योंकि x स्क्वायर और sin x के दो फंक्शंस हैं और प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, इसलिए इनको इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को यूज करेंगे। इस रूल को यूज करने के लिए x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और sin x को सेकंड फंक्शन मानेंगे और रूल को अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और इस रिजल्ट का फिर दोबारा से इंटीग्रल। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो अब हमारे पास रिजल्ट आता है अब यहां पर x cos x को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, क्योंकि x cos x प्रोडक्ट फॉर्म में है। सो वी विल अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अगेन as we applied it earlier. Therefore, after calculation, we get the result of first part. अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इन दिस इंटीग्रल वी हैव टू इंटीग्रेट x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 विद रेस्पेक्ट टू x। अब x और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 x के दो फंक्शंस हैं और दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में हैं,
लेकिन हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स रूल को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे और इसके लिए हम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 को t मानेंगे और इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। Now after calculation, we get the result of second part. Now we will solve third part of this question. अब जैसे कि हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया था, उसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके इस इंटीग्रल को भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t मानते हैं और इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। Therefore, the result of third part is